there was a small problem with the camera, but that is rectified now. Okay, fine. But I was saying that the type, how to calculate the errors. मैंने एक example लिया. Type 1 problem when there are multiple readings which are given. Okay. Now, suppose if I say x1, x2, x3 are three readings taken by an instrument. Okay. Readings. जब भी हम रीडिंग लेंगे तो एरर तो आने ही वाला है, थोड़ा बहुत एरर आता ही है. अब उस एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरर का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू मेरे पास 1 2 3 तीन मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू किधर है? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया. मैंने बोला अगर आपके तीन रीडिंग जैसे हैं, अगर रीडिंग ये तेरा रीडिंग है बेटा, तो एक्चुअल वैल्यू शुड बी अराउंड नियर टू दिस ओनली ना. यू कैन इमेजिन कि ये तेरा रीडिंग है और एक्चुअल वैल्यू 15 है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. सो द फर्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू. स्टेप नंबर 1, टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू, also called as true value, also called as most probable value. Most probable value, which is called as mean, or it is your average value. It is average value. So अगर मुझे measured value निकालना है, measured value के लिए, sorry measured नहीं, मेरे को actual value कैसे मिलेगा? By calculating the mean value. Mean of all the three readings, x1 plus x2 plus x3 by 3. अगर 4 रीडिंग होता तो x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4. अगर 2 रीडिंग होता तो x1 plus x2 divided by 2. So when we say that actual value कैसे निकाला? अभी तो 3 रीडिंग दिया था, एक्चुअल वैल्यू का खबर ही नहीं था, पर हमने रियलाइज किया अगर ये आपके रीडिंग है तो एक्चुअल वैल्यू इसके करीब ही होगा. तो करीब कैसे निकाला? बाय कैलकुलेटिंग द मीन. अभी स्टेप नंबर 1 आपको मिल गया, आपको एक्चुअल वैल्यू मिल गया. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग. हर रीडिंग का एरर निकालो. So if I say that absolute error in first reading, absolute error in the first reading को हम डिनोट करेंगे डेल्टा x1. डेल्टा छोटू ट्रायंगल को हम बोलते हैं डेल्टा x1 will be actual value मतलब ये तेरा mean value minus the measured value, पहला रीडिंग. Then absolute error in the second reading. That is delta x2 बेटा will be actual value को हमने step number 1 से निकाल दिया minus the second reading. And number 3 is absolute error
in the third reading. Absolute error in the third reading will be delta x3 is equal to the actual value minus the third reading. ठीक है, अभी हमको मिल गया, we have got the error in each reading. हर रीडिंग का एरर मिल गया, हर रीडिंग का एरर मिल गया. They can also ask you to find out the mean absolute error. आपको हर रीडिंग का एरर मिला. Now mean absolute error. Mean absolute error means हर absolute error का mean. So that is delta x mean is delta x1 plus delta x2 plus delta x3 divided by 3. So can I say it is your mean of step number 2. Step number 2 में जितने वैल्यूज मिले उनके मीन निकालना है मेरे को. Step number 4, they can ask you to find out relative error. Relative, जिसको हम fractional error भी बोलते हैं. Relative error और fractional error. Relative error or fractional error is given by, it is mean absolute error upon the actual value. मतलब in other words, step number 3 upon step number 1. Step number 3 upon step number 1. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, difference in the actual value and measured value upon the actual value. सर ऐसा क्यों लिखा? अगर एक ही रीडिंग होता तो मैं इसको डेल्टा x1 लिखता कि डेल्टा x1 अपॉन x1 एंड व्हाट इज, तो फिर मैं ऐसा लिखता ना डेल्टा x1 अपॉन x1. व्हाट इज डेल्टा x1? इट इज द एक्चुअल वैल्यू minus the measured value upon the actual value. होता नहीं ना? So yes, that is your relative error. And last में they can ask you to find out percentage error. Percentage error is always relative error multiplied by 100. Means in other words, step number 4 multiplied by 100. ये क्या था? Step number 3 upon step number 1 था. So they can ask you, जब भी रीडिंग दिया रहेगा किसी भी कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम में जिसमें मल्टीपल रीडिंग दिया रहेगा, they can ask you to find out absolute error in each reading. तो आपको मतलब absolute error in each reading पूछा है, मतलब step number 2 पूछा है, बट आपको नहीं लगता है step number 2 आप बिना step number 1 के नहीं कर सकते हो? तो आपको step number 1 के बाद step number 2. ऐसा भी है, they can ask you to find out mean absolute error. मतलब आपको step number 3 बोला है करने के लिए, लेकिन step number 3 के लिए step number 1 2 3 पूरा करना पड़ेगा. They can ask you to find out relative error, तो आपको 1 2 3 4 करना पड़ेगा. They ask you to find out percentage error, तो आपको पांचों स्टेप करना पड़ेगा. So depending बेटा क्या पूछा है उसके हिसाब से, मैंने तो एक जनरल एग्जांपल लेके बता दिया यार, अब तो सिर्फ वैल्यूज डालना है हमको. I do that also. लेकिन एक फॉर्मेट तैयार कर दिया मैंने कि अगर रीडिंग्स वाले, अगर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें रीडिंग्स है, बहुत सारे रीडिंग है, 2 रीडिंग 3 रीडिंग 4 रीडिंग 5 रीडिंग, सो अकॉर्डिंगली ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं एंड डिपेंडिंग क्या पूछा है उसके हिसाब से वी विल डू द नंबर ऑफ स्टेप्स. इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर रीडिंग का एरर बताओ, so we have to do step number 1 and find out the mean absolute error. mean step number 3 के लिए आपको 1 2 and 3 करना पड़ेगा. Find out relative error, so you have to do 1 2 3 4. Find out percentage error in the measurement, you have to do 1 2 3 4 5. So depending बेटा क्या पूछा है we have to do that. That is your first type of problem. Now let us talk about the second type of problem. First type कैसे मालूम पड़ेगा? When there are number of readings which are given. When एक ही क्वांटिटी का मेजरमेंट के आपको मल्टीपल रीडिंग्स दिए गए,
एक ही क्वांटिटी का आपको मल्टीपल रीडिंग दिया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप 2 दैट वी कॉल इट एज एरर इन कंपाउंड क्वांटिटी। सर नहीं समझा, कंपाउंड क्वांटिटी मतलब रुकना। ओके, दैट इज when a formula or an expression is involved when an expression, okay, or a formula is involved, ठीक है, that is your error in compound quantity. Example is one by one. Don't let us not jump. Let us understand it one by one. Okay. To explain it, let me write. Let delta x is the error in x and delta y is the error in y. हमारे पास दो टर्म है x और y. जनरल बात कर रहा हूँ. x और y ऐसे दो टर्म है. हर मेजरमेंट में एरर होता है. x का एरर डेल्टा x, y का एरर डेल्टा y. सो अगर आपसे किसने पूछ लिया व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरर अपॉन द एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इट इज द डेल्टा x बाय x इनटू 100. क्या लिखते हैं हम लोग? इट इज एरर अपॉन द एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. यही तो लिखते हैं हम लोग. और एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू. इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू अपॉन द एक्चुअल वैल्यू इनटू 100. इसको अगर हम बात करेंगे, ये तेरा रिलेटिव एरर हुआ कि नहीं? ये तेरा रिलेटिव एरर हुआ ना, तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसा हो सकता है. सो ठीक है. सो दैट इज योर परसेंटेज एरर इन x. कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन y, सो हम लिखेंगे डेल्टा y बाय y इनटू 100. डेल्टा y बाय y इनटू 100. अगर कोई मुझसे पूछेगा दैट इज ये जब x अलग y अलग, परसेंटेज एरर इन x इनटू y, x इनटू y, x एंड y हमको मालूम है. अगर ये कोई टर्म है जिसमें x इनटू y ऐसा फॉर्मूला है, तो आपको ही लगता है, याद है मैंने बोला था एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x में भी एरर होगा, y में भी एरर होगा. एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो दे आर एडेड. सो कैन आई से इट विल बी परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y. व्हाट इज परसेंटेज एरर इन x? हमने लिखा है डेल्टा x बाय x इनटू 100 प्लस डेल्टा y बाय y इनटू 100. कॉमन क्या आ गया बेटा? डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y इनटू 100. ओके. कल को अगर किसी ने लिख दिया x इनटू y के जगह पे लिख दिया x अपॉन y लिख दिया, x अपॉन y लिख दिया, तो फिर क्या करोगे? x अपॉन y लिख दिया अगर किसी ने, इट इज द सेम थिंग बिकॉज एरर. आप ये नहीं बोलना x अपॉन y, तो ये नीचे है तो माइनस होगा. एरर तो कभी सबट्रैक्ट नहीं होता है. अभी हमने देखा था एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो दे आर ऑलवेज एडेड. वेदर इट इज देयर इनिशियल फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. एरर्स आर ऑलवेज एडेड. मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, परसेंटेज एरर इन x स्क्वायर बोल रहा हूं. चल x स्क्वायर मतलब x इनटू x हुआ कि नहीं? ये कैसे x इनटू y था, तो मैंने x स्क्वायर को x इनटू x लिख दिया. मतलब यू विल से परसेंटेज एरर इन x, पहले वाला x प्लस परसेंटेज एरर इन दूसरा वाला x. दो x है ना, isn't that 2 times percentage error in x? Isn't that 2 times delta x by x into 100? तो हम ऐसा समझ ले क्या, x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर है तो पावर becomes a coefficient. So what is percentage error of x square? 2 times percentage error of x.
परसेंटेज एरर ऑन x। सो अगर कोई मेरे को पूछता है x स्क्वायर का, तो मैं बोलेगा पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट। एग्जांपल बोल, परसेंटेज एरर इन x रेज़ टू m, so by the same logic power becomes the coefficient m times delta x by x into 100, m times the percentage error in x। okay, कोई मुझसे पूछे percentage error in y raised to n for Nagpur, so वापस वही logic, power becomes the coefficient n times percentage error in y, power becomes the coefficient। if I say percentage error in x raised to m into y raised to m, बोल। so हमको मालूम है error in this plus error in second term, errors are always added, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, it is n times delta x by x into 100 plus n times delta y by y into 100। अगर आप इसको और निकालो तो सिंपल करो, n times delta x by x plus n times delta y by y, the whole multiplied by 100। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल को कोई बोले भाई ऐसा करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, errors are always added। बेटा हर क्वेश्चन यहीं पे आएगा, सिर्फ इतना दिमाग में रखना, errors are always added and power becomes a coefficient, ऐसा। ओके ठीक है, ये तो मैंने जनरल आपको 7 पॉइंट्स लिखा है। चलो देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। अगर फॉर्मूला है, अभी हमारे पास में दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ गए। we have two types of problem। type number 1, when there are multiple readings given। type number 2, when there is a formula involved। let's start with, I am talking about an example। एक जनरल बात करते हैं थोड़ी सी। ओके, if I write okay, number 1, area of a square plate is L square। एक फॉर्मूला इन्वॉल्व है, मतलब अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया का कैलकुलेशन के लिए आपको लेंथ को मेजर करना पड़ेगा और फिर आपको ये फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। सो अगर अब मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एरिया, तो मैं क्या बोलेगा, परसेंटेज एरर इन L plus percentage error in another L। so can I say power becomes the coefficient 2 times percentage error of length, बराबर 2 times delta L by L। that means I can say 2 times percentage error of L। अगर मैं बोलूं area of a rectangular plate, ये तो स्क्वायर प्लेट था बेटा, area of a rectangular plate is length into breadth। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दो चीज मेजर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एरिया, इट इज एरर इन लेंथ प्लस एरर इन ब्रेथ। तो डेल्टा L by L into 100 परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ प्लस परसेंटेज एरर ऑफ ब्रेथ। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा L by L प्लस डेल्टा V by V into ना। नंबर 3, अगर कोई मुझसे पूछता है फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, मेरे को कोई बोलता है एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ओके, दैट इज 2 pi RH। सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर। ओके, सो आई कैन से 2 pi RH मतलब एरिया निकालने के लिए 2 pi कांस्टेंट H कोड, 2 pi में कोई एरर नहीं आएगा, 2 pi में कांस्टेंट होता है, 2 pi में अगर कोई एरर नहीं, मिस्टेक हो सकता है बिकॉज़ वो कांस्टेंट है। सो हमारे पास एरर कितना आ सकता है, R और H में। सो जो चीज आप मेजर करोगे उसी में एरर आएगा। सो परसेंटेज एरर इन एरिया विल बी व्हाट, डेल्टा R by R प्लस डेल्टा H by H into 100 मींस परसेंटेज एरर इन R प्लस परसेंटेज एरर इन H। कोई मुझसे पूछ ले, ओके, इफ आई से बेटा फॉर एग्जांपल
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन आई से पाई आर स्क्वायर एच, पाई में कोई एरर नहीं आएगा, सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी व्हाट, आर स्क्वायर है ना, पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट 2 times delta r by r plus delta x by h, so whole multiplied by 100. Power becomes the coefficient. For that is your volume of a cylinder. Volume of cylinder. अगर हम आगे बात करें, चलो मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, इफ आई से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। इसमें कोई एरर पॉसिबल है क्या? 4/3 पाई में वो तो कांस्टेंट होता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 3 times delta r by r into 100, power becomes the coefficient, power becomes coefficient। कल को कोई बोले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ में कोई एरर नहीं होता है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी delta m by m plus 2 times delta v by v multiplied by 100। ये क्या है बेटा? It is error in mass, percentage error in mass plus 2 times percentage error in velocity, velocity। That is about your kinetic energy का। मैं तो ऐसे ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो भी याद आ रहा है वो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं। Okay, we are just writing it down. Now the question is, ये सब तो हमने लिख लिया, बट मैं बताऊं ये जो हर एक टर्म है ना, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा बी बाय बी, इसको एग्जाम में देने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्वेश्चंस को मेंशन करने का, एक ही चीज को मेंशन करने का तरीका अलग अलग होता है। वही तरीका हमको सीखना है कि कोई चीज अगर दी है, समथिंग इज गिवन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, तो ही हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, तो ही हम उसको फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? सर लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम विच अ डिवाइस कैन मेजर, मिनिमम विच अ डिवाइस कैन मेजर। अगर हम बात करें मीटर स्केल का, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? आपने बोला था 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट। वेरी गुड। इफ आई टॉक अबाउट द वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर अपने घर पे जो लटका हुआ रहता है, कैलेंडर का लीस्ट काउंट इज 1 डे, 1 day, that is minimum which can be measured, that is your 1 day, that's the least count। So when I say least count, it is the minimum which a device can measure and that is the maximum possible error of that instrument। मतलब अगर स्टॉप वॉच, अगर हम क्लॉक की बात करें, वॉच की बात करें, इसमें मैक्सिमम एरर कितना होता है? 1 सेकेंड, बिकॉज उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते हो। 1 सेकेंड से कम आप ये वॉच से आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो आपका एरर हो गया, वो आपका मैक्सिमम एरर हो गया। उससे ज्यादा हुआ तो मेजर हो जाएगा। वापस बोलो, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम विच अ डिवाइस कैन मेजर, जो जितना मिनिमम, उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। सो कैन आई से 1 मिलीमीटर या 1 सेकेंड, ओके, दैट इज द मैक्सिमम एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर 1 सेकेंड से कोई भी चीज ज्यादा हुई तो आप मेजर कर लोगे वॉच से, 1 सेकेंड से कम आप मेजर ही नहीं कर सकते। So 1 second is your maximum error by this instrument. 1 millimeter is the maximum error by this instrument. Okay. So when I say least count, it is the maximum error of that instrument. Maximum error of that instrument. जरा हम कुछ examples लेते हैं यार, एक example लेते हैं। Let us take the first example. That is length is measured. मैं example ले रहा हूँ। Length is measured by a meter scale। वो लोग ने बोला है meter scale। Length is measured by a meter scale and found to be 25 centimeter। Find the percentage error in measurement of length। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। Find the percentage error in measurement of length। सबसे पहली बात, ओके, अगर मैं आपसे पूछूं
व्हाट इज परसेंटेज एरर इन लेंथ का फॉर्मूला? आप बोलोगे डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 का कोई दिक्कत नहीं, वो तो मालूम है। लेंथ कितना है? लेंथ आपने कितना मेजर किया? 25 सेंटीमीटर। डेल्टा एल क्या होता है? एरर। अब एरर कितना है वो तो नहीं दिया है, लेकिन प्रॉब्लम में बोला है ना मीटर स्केल। प्रॉब्लम में बोला है ना मीटर स्केल। मीटर स्केल का व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल? Least count, it is the maximum error that is equal to 1 millimeter, which is 0.1 centimeter. 10 raised to minus 1 centimeter बोलो, okay? ना maximum error यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एल। डेल्टा एल is 0. It is 1 millimeter, that is 10 raised to minus 1 centimeter. कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0.1 सेंटीमीटर। सो व्हेन आई से लेंथ कितना है? L 25 सेंटीमीटर। समझे इसको? सेंटीमीटर में क्यों रखा? ताकि दोनों का यूनिट सेम रहे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला इज डेल्टा एल बाय एल इनटू 100। डेल्टा एल इज 10 raised to minus 1 upon 25 into 100। 25 ones are 25, 4s are, isn't that 4 into 10 raised to minus 1, that is 0.4 percentage. So what is the error? इसमें error percentage error कितना है? 0.4 percentage. इसमें कैच क्या था? पूरे क्वेश्चन में लीस्ट काउंट ये हमने निकाला। Why? Because हमको मालूम है ना यार मीटर स्केल है। मीटर स्केल ये नॉर्मली कोई और डिवाइस होता तो उसका लीस्ट काउंट देंगे वो, लेकिन ऐसा जो कॉमनली यूज है उसका नहीं देते। It is understood. It is understood. Example number 2. Example number 2. एक और एग्जांपल है। चलो, if I say that percentage error in radius is 2%, find the percentage error in volume. Volume of a sphere. ऐसा बोला है। Solution. हम सभी को मालूम है what is volume of a sphere का फॉर्मूला? 4/3 pi r cube। 4/3 पे pi में कोई एरर आता है? नहीं आता, बिकॉज वो कांस्टेंट होता है। सो कैन आई से दैट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी 3 times delta r by r into 100। व्हाट इज परसेंटेज एरर? डायरेक्टली दिया है 3 into 2% is how much? 6%। खत्म। उल्टा घुमाते, सपोज ऐसा दिया है if percentage error in volume is 6%, वो लोग ने दिया suppose, then find the percentage error in radius of a sphere। ऐसा बोला, वापस कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 pi r cube। 4/3 pi में कोई एरर नहीं। कैन आई राइट ओवर हियर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम is 3 times percentage error in R। What is percentage error in volume? 6% is 3 times percentage error in R। Arrange कर ले इसको। So what is percentage error in R equal to 6% upon 3? Answer is what? 2%। हम ऐसा भी कर सकते थे, क्वेश्चन को उल्टा भी दिया जा सकता था। Question could have been framed up उल्टा also। उल्टा also। कभी-कभी ना बेटा ऐसा भी देते हैं, ऐसा भी देते हैं that mass is given as 2 kg plus or minus 0.1 kg। ऐसा दिया, आपसे पूछेंगे find the percentage error in mass। ऐसा दिया, डोंट पैनिक। ये जब ऐसा दिया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपने मेजर किया मास जो आपको मिला 2 kg और उसमें एरर कितना है? 0.1, मतलब वो आपका डेल्टा एल। इसका मतलब ये होगा, ये जो टर्म है वो मास है और ये कौन है? डेल्टा एल। सो नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन मास बेटा? का फॉर्मूला डेल्टा एम बाय एम इनटू 100। डेल्टा एम मतलब 0.1 kg अपॉन 2 kg। मैं जानबूझ के kg लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए दैट कल को अगर यहां पे ग्राम लिखा है तो रुक जा। This is what? 2 ones are 2, 50s are. So what is that? 5%. This will be how much? This will be 5%. Now imagine
इमेजिन सेम क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, m is 2 kg plus minus 0.1 gram. Okay, then percentage error in mass, ऐसा percentage error in mass कैसे बोलोगे? डेल्टा m by m into 100. ये जब हम देखते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको कैसे लिख देगा? m प्लस और माइनस डेल्टा m, बराबर. अब देख, डेल्टा m कितना है? 0.1 ग्राम को केजी में लिख, समझा? और ये 2 kg आ गया, ताकि दोनों का यूनिट सेम हो. 1 ग्राम 1 kg नहीं चलता है, दोनों को ग्राम में लिख, दोनों को केजी लिखने को चलेगा, लेकिन एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100. ये कितना हो गया? 10 raised to minus 4 into 10 raised to 2 upon 2. 10 raised to minus 2 upon 2, that is 0.5 into 10 raised to minus 2, 0.005%. या कैच का था, सिर्फ ये केजी को सिर्फ ग्राम बना दिया. देख एरर देख कितना कम हो गया. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. हमने यहाँ पे किया क्या? एरर अपना 0.1 kg था, अब यहाँ पे 0.1 ग्राम हो. तो जब भी हम ऐसा दिया रहेगा तो कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट्स. सेम यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करोगे मिस्टेक होगा. थोड़ा सा और एक एग्जांपल दे, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टेंस का. चलो, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं. ओके, ये थर्ड था, फोर्थ. सपोज V is given as if I say V is 50 plus or minus 0.5, 50 volt plus or minus 0.5 volt, दोनों का यूनिट सेम है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. करंट इज 10 एम्पियर प्लस और माइनस 0.1 एम्पियर, दोनों का यूनिट सेम है, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. you are asked to find resistance with error limits. मतलब मेरे को पूछा क्या मालूम है? R प्लस और माइनस डेल्टा R पूछा है. R भी निकालना है और डेल्टा R दोनों निकालना है. ये बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, R प्लस और माइनस डेल्टा R, एरर विद रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स पूछा है. ओके, अच्छा चलो, इफ आई से दैट स्टेप नंबर 1, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन I. V कितना रहेगा? V इज हाउ मच? 50. I कितना है? 10. इतना 5 ओम. स्टेप नंबर 2, R का फॉर्मूला इज V अपॉन I. सो बोल, डेल्टा R बाय R इनटू 100. परसेंटेज एरर इन R इज डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I इनटू 100. कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? ओके, ये 100 जाने देने को नहीं चाहिए. तो व्हाट इज डेल्टा R बाय R? बेटा डेल्टा V कितना है? 0.5 अपॉन 50 प्लस 0.1 अपॉन 10 डेल्टा R. और ये R कितना था? R हमने निकाला था 5. तो डेल्टा R विल बी व्हाट? दिस विल बी हाउ मच? 0.01. फेयर इनफ. प्लस 0.01 into 5. 0.0, this will be 2 into 0.01 into 5. That is 0. This is 0.1. Delta R will be how much? Delta R will be 0.1 हो जाएगा. Delta R will become 0.1. लेकिन खत्म नहीं हुआ. मेरे को क्या पूछा था? R प्लस और माइनस डेल्टा. मेरे को ये लिखना था. R कितना है बेटा? R is 5 प्लस और माइनस 0.1. ऐसा कोई अगर परसेंटेज एरर पूछता तो मैं क्या लिखता? डेल्टा R बाय R इनटू 100. डेल्टा R का मतलब 0.1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 5 1 का 5, 20 का. सो आंसर विल बी हाउ मच? 2%. अगर पूछा होता तो, अभी पूछा नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे खत्म हो गया. ओके, एक और चीज है. अभी मैंने जस्ट बोला, अगर कोई पावर में लिखा है, पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट. ओके, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप मुझे सोच के मेरे को बताइए. x is equal to a square b cube root of c d raised to 4. ऐसे जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया.
a square b cube root of c d raised to 4 मैं आपसे पूछ रहा हूं what is percentage error in x? कैसे लिखोगे आप? Power becomes a coefficient 2 times delta a by a plus 3 times delta b by b plus डिवीजन से हमको फर्क नहीं पड़ता है प्लस रूट ऑफ सी मतलब हाफ ना, हाफ टाइम्स डेल्टा सी बाय सी प्लस 4 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी। थोड़ा आगे लिख लो ताकि नीचे ना लिखना पड़े। हाँ सामने सामने लिखते हैं ना, एक ही लाइन में समझ में आएगा। ओके यहां पे लिख ले बेटा इसको प्लस 4 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी द होल मल्टीप्लाइड बाय 100। Power becomes a coefficient, multiplication या division or errors are always added। मेरे को बता the term which contributes maximum error and minimum error, ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको सबसे ज्यादा एरर डालता है और सबसे कम डालता है? ABCD which error का जिसका पावर ज्यादा है will contribute for more error। पावर किसका ज्यादा है? 4 का। ये नहीं सोचना वो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो -4 होता है। errors are always added, so 4 times लिखा भी है ना हमने। और which one gives least minimum error will be half ना, देखा ये 2 3 half 4, so 4 is greater than 3 is greater than 2 ना, so which one is giving you maximum error? D के बाद में कौन देता है? D के बाद कौन दिया तेरे को? D के बाद में B ने दिया, फिर कौन दिया? A, और लास्ट में कौन दे रहा है तेरे को? C। So which is contributing for maximum error? D। Who is contributing for minimum error? जिसका पावर सबसे कम है, वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने जानबूझ के डिनोमिनेटर वाला एग्जांपल लिया। Okay, so the term with the greatest power will contribute maximum error. The term with minimum error, minimum power will give you minimum error, minimum error। बेटा अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हम errors का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। I have yet not started with the example। सिर्फ आप ये चीज पहले दिमाग में डाल लो, ये सोचना भी नहीं कि इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आएगा, मैं यूएसएस करता हूँ। प्लीज जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक शानागिरी नहीं करने का। नो, मैं जब बोलूंगा तब करने का। बेटा बिलीव अस, ओके हम जानते हैं कौन सा स्टेप पे क्या करना है। भाई नहीं करो प्लीज ना, चिल मारो, लिव योर लाइफ। जितना काम बोला है उतना करो, उससे ज्यादा भी मत करो, उससे कम भी मत करो। ओके ज्यादा करने के चक्कर में अपना लाइन एंड लेंथ खराब होता है। ओके नहीं, जितना बोला गया उतना करो प्लीज। So this is what we guys have done today। I introduced you that accuracy depends on errors and mistakes। Mistakes can be avoided, eliminated. Errors cannot be avoided, it can be minimized। Then I told you what is errors, definition of errors, types of errors। Then how to calculate error, 2 types of problem। Type 1 when there are multiple readings which are given। Type 2 when there is a formula involved। फॉर्मूला इन्वॉल्व में हम क्या करते हैं? पावर बिकम्स अ कोएफिशिएंट। ये चीज दिमाग में रखो एंड एरर्स आर ऑलवेज एडेड। और जितना बोला है उसको एक बार अच्छी तरह से आप लिख के निकाल लो एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ डाउट सॉल्विंग। इन अ डाउट सॉल्विंग आई विल आल्सो डिस्कस दैट 4 or 5 questions which I had given in the DCT HOTS वाले question I will discuss in the doubt solving। Okay, so that is when we meet on in our Zoom session, guys. That is at 2 p.m. on Saturday, which is 17th of October, guys। Till then, guys, take care, God bless, and padhte raho yaar। Bye bye, have a good night।